آج پروگرام میں بات کریں گے کوئٹہ میں پرسوں رات کے دہشت گرد حملے کے بعد وزیر اعلیٰ ثناء اللہ زہری کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، ساتھ ہی تحقیقاتی ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی۔ ڈی آئی جی پولیس عبدالرزاق چیمہ کے مطابق تحقیقات کے لیے پنجاب کے فورینسک ڈپارٹمنٹ سے بھی مدد لی جائے گی۔ کوئٹہ کے علاوہ آج چمن پشین، لورا لائی اور صوبے کے دیگر شہروں میں 3 روزہ سوگ کی وجہ سے شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی۔ 25 اکتوبر کے دہشت گرد حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی اور آج افغانستان کے صوبے غور میں داعش کے کمانڈرز نے 30 لوگوں کو اغوا کر کے قتل کر دیا۔ افغان حکومت کے ایک اہلکار نے روئٹرز کو بتایا کہ داعش نے اپنے ایک کمانڈر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے یہ کام کیا۔ اور حکومت کا 2 نومبر کے لیے تیاری شروع۔ اسلام آباد کے اپارا مارکیٹ کے کمیونٹی سینٹر میں 700 ایف سی اہلکار پہنچ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آئندہ 48 گھنٹوں میں آزاد کشمیر اور پنجاب سے مزید نفری آنے کا بھی امکان ہے۔ 6 سرکاری عمارتوں کو بھی خالی کروا دیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں بول بول پاکستان، میں ہوں گلمین سیٹھی۔ میں نصرت جاوید۔ 0512606028 ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں۔ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کو کنیکٹ کیا جاتا ہے آپ براہ راست ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں، لہذا کنیکٹ ہوتے ہی اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں اور صرف اسی موضوع تک محدود رہیں جو زیر بحث۔ اگر آپ ہم سے سوشل میڈیا پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/بول بول پاکستان1۔ ٹویٹ کرنے کے لیے ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان _ اینڈ بول بول پاکستان @donnews.tv پہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ گلمین بھی تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، بڑا ظلم ہو گیا، بہت ہی زیادتی ہو گئی جب اپنی طرف سے تم نے ہیڈ لائنز بنا کے وائس اوور کر کے جب تم میک اپ کروانے گئیں تو وہ شہباز صاحب تو شہباز صاحب خدا کو نہیں، ویسے میں نے اب طے کر لیا کہ کسی کا کوئی سٹیٹمنٹ میں نہیں ڈالا کروں گی۔ نہیں اب کیا صرف ٹھوس خبریں ڈالوں گی نصرت صاحب ہیڈ لائنز میں۔ ہاں ایسے کر رہے تھے، نہیں وہ یہ ہوتا ہے، وہ امیر ترین غریب ترین پتہ نہیں کون کون سے ترین اور خدا وہ جاوید صادق، اب وہ عمران صاحب اور ان کا ڈائریکٹ میچ، یہ وہ الزامات، لیکن وہ یہ کہ تھوڑی سی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ موصوف کو وہ جتنے کہا تھا نا 26 ارب یا 27 ارب انہوں نے اتنے کا ہی ہرجہ نہ کر دیا ہے کہ بھئی یہ تو anyway، غلط ہو گیا کام۔ الزامات اور جوابی الزامات۔ آج عجیب و غریب خبروں کا دن تھا نصرت صاحب، ہر طرف صرف اور صرف عجیب و غریب خبریں سننے کو مل رہی تھی، کوئی مطلب اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی مجھے، ہے so کہ strange۔ جو میں آپ کو بہت عرصے سے کہہ چلا جا رہا ہوں اور کل بھی جو میں داد فریاد کر رہا تھا وہ یہ کہ اس ملک میں صحافت ختم ہو چکی ہے، اس لیے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ عجیب و غریب خبریں۔ اب آپ مجھے بتائیے 62 بچے 62 بچے بالکل، آج ایک اور بچہ ہمارے پاکستانی بچے، وہ بچے جنہیں ٹریننگ دے کر جو ہے میرے اور دفاع کے لیے ٹرین کیا جا رہا تھا، بیکاز پولیس ہمیشہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوتی ہے۔ پیر کی رات ان پہ حملہ ہوا۔ اب اہم ترین بات کیا ہے، ان 62 بچوں میں سے 20 بچے یہ تربت کے تھے، اچھا اوکے، 11 بچے پنجگور کے تھے۔ اب یہ جو دو مطلب تربت، اب تربت مصیبت یہ ہے کہ وہاں پہ ٹیلی میٹر نہیں لگا ہوا۔ بالکل تربت جو ہے کیوں جائے، ہمارے ہاں جب بلوچستان کا ذکر ہوتا ہے نا تو جو بھی بندہ بیٹھے گا اس کی عقل تو یہی سے شروع ہوگی، وہ ہوگا جی پہاڑوں پہ سردار ہوتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک بلوچستان پہاڑوں کا بلوچستان ہے، ایک بلوچستان ریگستان کا بلوچستان ہے، ایک بلوچستان ساحل کا بلوچستان۔ جغرافی تو دیکھ لیں، اتنا بڑا صوبہ واقعی پاکستان کا رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے یہ تربت۔ تربت صدیوں سے، جس کو آپ کوسٹل بلوچستان کہو گے، اس کا ایک فکری سینٹر ہے۔ ٹھیک، زیادہ دانشور، زیادہ پڑھے لکھے، زیادہ متوسط طبقے کے لوگ آپ کو یہاں ملتے ہیں۔ ٹھیک، یہی وہ شہر ہے جہاں سے جن کو آپ لوگ کہتے ہیں نا جی کہ نوجوان، ناراض نوجوان جن میں علیحدگی پسندی کے رجحانات، وہ سب سے زیادہ اس شہر کے متوسط طبقے کے بچے ہوتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں دوز آر ایجوکیٹڈ ونز جو اس طرح اور ناراض ہیں، یس، اور بنیادی وجہ کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ
उनके साहिल और उनके वसाइल की बुनियाद पर जो रौनक लगती है आजकल, जैसे सी पैक उससे पहले, उसमें हमें यानी बलोचों को कोई हिस्सा नहीं मिल रहा, और बाकी सब लिहाजा वो अब ऐसे मरकज से, ऐसे शहरों से बच्चे भर्ती किए जाते हैं। ठीक है, ताकि उनकी महरूमी गुड, कम हो। जबरदस्त। अब उन्हें ट्रेन किया जाता है बेचारों को, और वो 31 बच्चे जो हैं जिनको नौकरी फराहम करके हमने सोचा था कि इन शहरों में जो ऐसे जज्बात हैं उनको अब हम कंट्रोल करेंगे, उन्हें बताएंगे कि नहीं यार, आप भी हम में यू शेयर दी पाए विद अस, उनसे हम हाथ धो बैठे हैं। अब मेरा एक सवाल है, मैं सुबह से देखता रहा जानबूझकर हाथ में रिमोट लेकर टक 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 3 बजे तक, मुझे कोई एक मुस्तैद रुकन 24 घंटे मुझे और तुम्हें बाखबर रखने का दावेदार अयान अली के तमाम तरह से मसाइल जो शायद हमें टेलीविजन पर डिस्कस नहीं करने चाहिए वो ढूंढ लेने के दावेदार, उसका टैटू देख लेने के दावेदार, उनमें से कोई एक मुझे जो है वो रिपोर्टर तुर्बत और पंजगोर में उन खानदानों को मिलता नजर नहीं आया जिन्होंने बहुत आस उम्मीद के साथ ये बच्चे दिए थे। इन शहरों में अब क्या महसूस किया जा रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं, वो अपने नुकसान का, अपने लॉस का जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं? क्या आप मैसेज देना चाहते हो वहां पे तुर्बत और गवादर के लोगों को कि तुम्हारे बच्चे जाएं पुशअप? तो देखो हमें तो पुशअप, हम पुशअप पे अभी कंट्रोवर्सी, ठीक है जी। और दूसरा फिर उन्होंने आज की किस्म ये किया, कोई वो जावेद सादक पादक निकाल लिया, उसकी खबर अभी वो आज फिर वो उन्होंने खुदा को हाजिर नाजिर अदालत, हाँ, वो फिर उन्होंने जाहिर जवाब देना था, वो अब ये चलता रहेगा। जाहिर है तो नहीं, पहली मर्तबा रिएक्ट किया है, वैसे तो वो आमतौर पर इग्नोर करते हैं। नहीं कर, ओहो, ही थिंक्स हिमसेल्फ बियॉन्ड सच थिंग्स। देखो जब आया तो गुस्से में थे, मैंने देखा, मैं चेक कर रहा हूं, होते हैं मोहम्मद नुसरत साहब, शहबाज शरीफ साहब गुस्से में ही होते हैं। वो जब आज जैसे बड़े तंज, मैं भी आप इसका हंस का जवाब दे देता हूँ। अच्छा ये जो है ना, दैट इज यू नो एंगर मैनेजमेंट। बहरहाल वो जाने, उनका काम जाने, मुझे इससे गरज नहीं है। मुझे बुनियादी गरज ये है कि मैं एक पाकिस्तानी के तौर पर इस्लामाबाद में बैठा हुआ, मैं अपने तुर्बत के लोगों को, मैं अपने पंजगूर के लोगों को, मैं गवादर के लोगों को, मैं अपने पसनी के भाइयों को, उनके घर वालों को ये बताना चाहता था कि यार हम आपके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं, हमें पता है कि आपको कितना बड़ा नुकसान हुआ। नहीं, मेरी कम से कम मैं नहीं, आपके अपने जज्बात यही होंगे, लेकिन अगर आप मीडिया की बात करें तो हम बिल्कुल उनके गम में शरीक नहीं है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। यही आप पॉइंट, इज द पॉइंट यू बीन मेकिंग, बट या दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एजिटेट। लेकिन एटलीस्ट मुझे तो नहीं को रोक रहा ना, आपको कोई नहीं ना चल रहा हो वहां पे टेलीमीटर, 0 रेटिंग आ जाए, टेलीविजन ही शायद ना हो, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। लेकिन मैंने इसके बारे में अपनी एजिटेशन, अपने एंगर का इजहार करना है। आज वो हो गई है जी इंक्वायरी कमेटी, यार कम से कम इतना तो कर लो आज के जमाने में, इन दिस डे एंड एज ऑफ डिजिटल एंड फोरेंसिक एंड फलाना कि दाइश ने कुछ तस्वीरें दी हैं। ये आप सरकारी सतह पर ये तो कह दें कि हाँ जी कुछ ना कुछ हमें इशारे मिल रहे हैं, या कि एब्सोल्युटली रबिश, ताकि वी कुड मूव ऑन। कुछ तो जवाब एक दे दो यार, बाकी सवालात तो मुख्तलिफ हैं, और मुझे 100% यकीन है कि हम जो सवालात उठाएंगे उनमें से किसी का भी जवाब नहीं मिलना। नहीं, वो अमेरिकन को तो बता दिया ना, अमेरिकियों को आज हमने, वो अभी खबर आई थी थोड़ी देर पहले कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने अमेरिकन एनवॉय को बता दिया कि एनडीएस और रॉ जो है ये काम कर रही है पाकिस्तान में। तुम पता करवा लिया नुसरत? वो क्या करेंगे पता नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, आप वो टेलीफोन करेगा मत करें। नहीं क्या मतलब This is the only information that I have got क्वेटा के हवाले से कि आज क्या पेशरफ्त हुई है कि इन्वेस्टिगेटिव हमारे कौमी सलामती के मुशीर ने अमेरिका के कौमी सलामती की मुशीर को, शायद एनवॉय को, या एनवॉय को, सफीर साहब को शिकायत लगा दी। नेक्स्ट तो पता चल गया कोई आपके कौमी मुफादात को
कोई आपके यहाँ अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए किसी को फोन नहीं किया करता। ना वो कुछ करेंगे मगर ये काम आपके करने के हैं, आपकी जिम्मेदारी है। ये शिकायत लगाने से नहीं, ये खबर लगाई जाती है ना हमें तसल्ली देने के लिए कि हमने जी अमरीकनों को कह बता दिया हमने उन्हें। हाँ, हम बताते रहते हैं, हम पूरी जी, दुनिया का डॉसियर ज़मीर वॉसियर। झंझोड़ रहे हैं। Yes। मीनवाइल ये है कि खुदा का शुक्र है बहुत तबाही से बच गए। जी, वो सनाउल्लाह ज़हरी साहब, 62 लोग मर गए। सुभान अल्लाह, मैं तेरे सदके जाऊंगा इस वजीर आला के। वो पहले एक नमूने थे रईसानी, वो डिग्री तो डिग्री होती है, अब ये पाए जा रहे हैं माशाल्लाह। ओ भाई क्या बात कर रहे हो, उस माँ से पूछो जिसका बच्चा गया है। बजाय शर्मसार होने के, बजाय शर्मिंदा होने के, ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जी हम शर्मिंदा हैं। मैं कोई आपका इस्तीफा नहीं मांग रहा, मैं बतौर वजीर आला मैं उन माओं से और क्या कह सकते हैं माफी नुसरत मांगता साहब इसके हूं अलावा वाकई कि मैं वजीर आला होते हुए इन बच्चों को जिनके बारे में आपने बड़ी आस और उम्मीद बांध रखी थी, इनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाया। ये कहने में कुछ नहीं जाता, लेकिन हम सरदार सनाउल्लाह ज़हरी होते हैं। क्यों शर्मिंदा होंगे। चलिए नुसरत साहब ब्रेक समझ गए हैं ना आप। वक्फा लेते हैं, वक्फा लेते हैं। जब वक्फे के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। क्वेटा पे भी हम बात कर रहे हैं और भी जो आज डेवलपमेंट्स हुई हैं उन पे भी गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर। अच्छा, अभी गुलबी ने अभी ब्रेक में मुझे बताया है प्रोड्यूसर साहब ने कि अभी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि वो लोग जो थे हमला आवर 3, उनका रिकॉर्ड जो है वो नादरा पे नहीं, तो उससे ये प्रिज्यूम किया गया है वो यहाँ कि के नहीं तीनों के तीनों गैर मुल्की थे। अब मसला ये है कि उसमें से एक जो है वो जो 3 जो दाइश ने अपने वो सरकारी उस पे उन्होंने जो किया है, उसमें एक के बारे में तो उन्होंने खुद कहा कि वो उज़्बक है। तो ठीक है, फिर दैट मेक्स। अब बाकी 2 अफराद के बारे में अब इससे भी जो है ना जरा थोड़ा सा, अब हर चीज़ जो है ना मेरी दानिश में जो कुछ हुकूमती और सरकारी सतह पर कहा जाता है उसको शक और शुबे की निगाह से देखना जरूरी है। ठीक है, राइट। सवाल ये है कि यही नादरा है ना, उसके बाद जब काउंटर फॉइल्स जाते हैं तो वो ये इंतहाबी ये सारा झगड़ा क्या चल रहा। बिल्कुल शुरू वो कभी कहते हैं स्याही फॉल्टी थी, कभी ये कभी वो कभी फला। और ये 12 चमन से कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर क्या हाल है आपका? जी ठीक है जी, आप फरमाइए भैया। जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? बहुत अच्छी तरह सुन रहा हूँ मेरे भाई, आप बात कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। जी ये आपसे एक सवाल था जी। ये हमारे पूरे पाकिस्तान के हर शहर में कैमरे लगाए गए। हाँ जी कैमरे लगाए गए, तो ये कोई ट्रैफिक सेंटर में कैमरे क्यों नहीं लगाए गए और यहाँ कंट्रोल रूम क्यों नहीं बना? चलें जी, बिल्कुल ठीक है जी। ये आप वैसे सवाल आपका आ गया, मैं इसको ऑन एयर आ गया। अल्लाह करे ये किसी तरह सनाउल्लाह ज़हरी साहब तक पहुंच जाए और वो उसका अगर जवाब देना मुनासिब समझे। वैसे सरदार आमतौर पर जवाब नहीं दिया करते, रियाया उनके सवालों का जवाब दिया करती है। कोयटा से कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरा सवाल सुन ले सर। जी अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज हम पाकिस्तान में हम आजाद हैं या दहशतगर्द आजाद हैं? फिलहाल तो दहशतगर्द जरा कुछ थोड़े से ज्यादा आजाद लग रहे हैं जी, लेकिन ऐसे वाकयात, लेकिन एक ब्रॉडर टर्म में बहरहाल भैया 20 करोड़ का मुल्क है, तो बहरहाल अब ऐसा भी नहीं जी। कोयटा से ही एक और कॉल जल्दी से ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है जी। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आज आपने बलूचिस्तान के शोधा के बारे में बताया। अरे भाई, सबसे पहली बात तो नहीं, सबसे पहली बात यह है कि आप मेहरबानी करके मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। मैं बल्कि शर्मिंदा हूं कि मैं इस पूरे वाक़े पर खुद वहां पहुंच कर तुरबत और गवादर के हाल नहीं बता सका। बहरहाल आप फरमाइए जी। ये भी आप है कि आपने तुरबत और पंजगुर, ग्वादर और
पशीन के अब्दुल्ला के बारे में बताया, वहाँ इस्लामाबाद में बैठ कर के ये लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, समझ गया। और दूसरी बात ये है, आपसे इस मौजूद से क्वेश्चन था, आप मेहरबानी सुन लें कि आज ये चीफ मिनिस्टर पंजाब कस्में उठा रहे थे, कस्में और अल्लाह पाक और जन्नत और दोज़ख और आखिरत, तो काइंडली उनको कहें कि सबसे पहले वो तो यही है कि मगरबी रूट उन्होंने चेंज करके सारी इंडस हाईवे और पंजाब में बना दी है, समझ गया। मगरबी रूट इन्होंने बिल्कुल देखें, बात सुने मेरी, मेरे भाई, अब आपस की बात है, ये मेरे हाथ बंधे हुए देखें, वो ऑलरेडी मुझसे काफी नाराज हैं। तो अब ये कि लाहौर कभी कभार जाना होता है, ऐसा ना हो वहाँ जाने से भी रुक जाऊँ, आज तो वैसे भी वो गुस्से में थे, लेकिन मैं आपको मगरबी और मशरकी रूट का ये भी मैं किसी दिन आपकी खिदमत में ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक बात हमेशा याद रखिए, इसमें इन्वेस्टमेंट चीन से आ रही है और जो पैसा लगाता है तरजीह पहले उसकी होती है कि उसने कहाँ लगाना है, इसको हमेशा ज़हन में रखिए। कोयटा से कॉल, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी भैया। सर, ये कोयटा में क्या हाल हो रहा है? इधर फौजी कड़ा यार आदमी को तलाश करता है, इसको क्यों नहीं तलाश किया? वो रात को आए थे ना जी, और दूर था कोयटा से, इसलिए भाईजान वो देखिए इस तरह की कोताहियां होती हैं, हम यही रो रहे हैं। लेकिन ये कहना कि कोई स्नीक इन नहीं कर सकता, तो देखिए अमेरिका और बरतानिया और फ्रांस, अभी रिसेंटली देखिए फ्रांस भी बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, बेल्जियम, ब्रसल्स, ये दोनों बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक हैं भैया, उनमें ऐसे वाक़यात होते हैं। और दूसरी तरफ टर्की में जो उनका वो इलाका जहाँ पे कुर्द अक्सरियत है, वहाँ पर ये वाक़यात तकरीबन मामूल का वाक़या है ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कह दें कि जी इसलिए चूँकि और जगह भी होता है तो कोयटा भूल जाए, नहीं, क्योंकि कोयटा अपनी साख्त के एतबार से ऐसा शहर है जिस पर निगरानी रखी जा सकती है, इट हैज़ बिन डिज़ाइन दैट वे। और सेकेंडली कि कोयटा मुसलसल निशाने पे रहा है और हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी रियासत ने अपनी कैपेसिटी डेवलप की है इस शहर को प्रोटेक्ट करने की। लाहौर से कॉल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी भैया, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर भाईजान बात कर लेना। सर, मैं नुसरत साहब, मैं राना कयूम बात कर रहा हूँ जी। जी राना साहब, आपसे ये क्वेश्चन छोटा सा करना था कि अब तो ये के साने के हवाले से प्रूव हो गया है कि ये फॉरेनर थे, गैर मुल्की थे, जो कि ये अभी साबित नहीं हुआ भैया। सर, ये मतलब कि ऑलमोस्ट मीडिया पे यही चल रहा है कि ये ओहो, उनके जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिले हैं उनका नादरा में फिलहाल रिकॉर्ड नहीं मिला। अच्छा चले, गैर मुल्की हैं तो अब क्या करें? सपोज हमने चले अभी जस्ट सपोज हम कर रहे हैं कि चले जी, चले ये फर्ज कर लिया कि ये साबित हो गए हैं कि तीनों के तीनों पाकिस्तानी नहीं थे, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? अब सर, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारी जो एजेंसीज हैं, क्या उनका काम से यही साबित करना है कि ये गैर मुल्की थे? सर, मतलब उनकी अपनी कारकर्दगी एजेंसीज की क्या है, वो किस चीज नहीं जी, वो बहरहाल ये इसका देखिए, आप एजेंसियों को जहां पे जिम्मेदार ना होता है ना, वो है इस चीज को प्रिवेंट करना। अब काम है अहलकारों का, तफ्तीशकारों का, यहां पे अब एजेंसी का काम नहीं है। अब मुजरिमों की निशानदेही करना, उनकी शनाख्त मालूम करना, उनकी शहरियत अगर पूरी नहीं तो उसके करीब करीब पहुंचना, ये अब तफ्तीशकारों का काम है, ये एजेंसियों का काम नहीं है। ये पुलिस का काम है और तफ्तीशकारों का और दीगर जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं। हाँ, इस हमले से पहले रियासत को तैयार करना और प्रिवेंटिव स्ट्राइक के लिए करना के कोशिश ऐसी होती कि ये हमला ना हो पाता, यहां एजेंसियों की जिम्मेदारी थी, अब नहीं है जी। और इसके साथ ही ब्रेक के जी वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ नुसरत साहब बात सुन सकते हैं जी, तो आप क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि जो आज सब सारा दिन ये चलता रहा
کیا چلتا رہا؟ یہ کہ اس نے یہ کہہ دیا, اس نے ادھر وہ خورشید شاہ صاحب بات کر رہے تھے, اعتزاز احسن صاحب کو اب عمران خان کا لہجہ برا لگ گیا, عمران خان صاحب کو کرپشن نہیں مل گئی. آج بلکہ وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں خطاب کر رہے تھے, اتنے بڑے وہ دھرنے کی جنرلی مجھے ڈیجا وہ ہو گئی, کیونکہ بہت عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ میں نے شروع کی تھی تحریک, میں نے کہا 4 حلقے کھول لو, تو وہ ایک دم مجھے لگا کہ ہم وہ 2014 میں چلے گئے ہیں پھر سے. تو اب پولیس بھی آ گئی, اب کیا ہوگا نصرت صاحب؟ کیا واقعی مطلب شوڈ وی بی کنسرنڈ اسلام آباد میں جو لوگ رہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتی ہیں, دیکھیے انہوں نے تاریخ کون سی دے رکھی ہے؟ 2 نومبر. آج کیا تاریخ ہے؟ آج 26. اچھا, اب 26 سے لے کر 2 نومبر تک میں صرف یہی ڈسکس کرتا رہوں؟ نہیں, مگر کیا کریں, اب ہم کیا کریں؟ مطلب میں جب دیکھتی ہوں کہ یہاں پارا کمیونٹی سینٹر میں لوگ آ گئے ہیں. کون آ گیا؟ پولیس والے, ایف سی والے, اگلے اور بھی آنے والے, کچھ 6 بلڈنگز بھی خالی کروا لی انہوں نے. ابھی سے کیوں خالی کروا لی ہیں؟ کیوں نہ خالی کروائیں؟ پتہ نہیں, یہی ابھی آپ کہتے اتنے دن رہ گئے, آپ کہہ رہے ہیں کیا آپ کی نسل ہے نا, میری نسل آپ کی نسل ماشاءاللہ بہت آزاد فضاؤں میں اس نے سانس لیا ہے. اور کیا مطلب؟ او بھائی, ہیئر از اے لیڈر جن کا 2013 میں جب انتخابات ہوئے تو ڈائریکٹ ووٹوں کے حوالے سے 2nd لارجسٹ پارٹی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے باوجود ان کا یہ دعویٰ ہے, اتنے زیادہ ووٹس لینے کے باوجود ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جی ان سے وہ الیکشن چرایا گیا. اب اس جماعت کے رہنما جنہوں نے اس سے پہلے یہاں دھرنا بھی دیا تھا 124-26 دن کا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 10 لاکھ لوگ لے کر آؤں گا اور اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر دوں گا. تو اب پولیس کیا کرے, بیٹھی رہے؟ اگر فرض کرو 2 نومبر, وہ 1 نومبر سے وہ تالے والے لگنے شروع ہو جائیں گے, اس وقت وہ اگر پولیس بلائیں, رینجرز بلائیں, ایف سی بلائیں, تو وہ کیسے آئے گی؟ تو اس کا مطلب ہم سمجھیں کہ شہر بند ہوگا؟ ارے بی بی, ریاست کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے پھر اس کے بعد ہم ہی ٹیلی ویژن پہ بیٹھیں گے کہ کیا آئی جی جواب دو, تمہیں اندازہ نہیں تھا, کیا تیاریاں تھی آپ کی, آپ کو اندازہ نہیں تھا, یہ شہری جو ہے نہیں, مطلب یہ that's not the point. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ مطلب اس کا مطلب ہے کہ یہ ہونے والا ہے. ابھی تک ہم شاید سوچ رہے تھے کہ کوئی او بھائی میرے, ایک بندہ ریپیٹڈلی عمران خان از ریپیٹڈلی سیئنگ, حتیٰ کہ کل جب وہ کوئٹے کے واقعے کے کل وزیر اعظم استعفیٰ دیں تو وہ پھر بھی دھرنا دیں گے 2 نومبر کو. کیا مطلب is it that ridiculous? I don't understand what you, آپ ایک بندے نے کل کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ سب سن لو. دوسرے صاحب ویسے وہ کہتے رہتے ہیں رین اور شائن, پھر بدل بھی جاتے ہیں نا. مطلب میں اب اس کو کتنا سنجیدہ لے سکتی ہوں؟ کم آن, I don't know what to make of this. میں جینوئنلی آج کے دن ابھی تک 26 اکتوبر کو یہاں بیٹھی ہوئی کنفیوزڈ ہوں کہ آگے والے دنوں میں کیا ہوگا. آگے والے دنوں میں عمران خان صاحب دیکھو آج صبح سے کیا ہے, کبھی کہیں روزانہ نہیں, وہ پچ تو وہ دے رہے ہیں. کیا پچ دے رہے ہیں؟ جاوید صادق کی بات کی, خورشید شاہ کو ڈبل شاہ کہا, اس کے بعد تم سارے لوگ کیمرے لے کے کہاں پہنچ گئے ہو, اور پھر یہ کہ جاتے ہی شہباز شریف نے کیا کہا, تو who is calling the shots? I have no idea. عمران خان. I mean if بابا صبح اٹھ کے اس نے کہا کہ جی جاوید صادق, ہاں میڈیا پہ ہی is calling the shots. تو یہی ہوتا ہے, ہمارا ایجنڈا وہ ڈٹرمن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. او بی بی, اور کیا ہوتا ہے, جاؤ پاکستان میں جا کے لوگوں سے بات کو کہو جی کچھ بھی صادق کون بڑی گل, جس کا کبھی نام ہی نہیں پہلے سنا ہوگا, آج ان کو پتا ہے کہ وہ آدمی کرپٹ ہے, جو بھی ہے, مطلب پتہ نہیں کون ہے وہ. کسی نے مانا کہ بچہ وہ اپوزیشن لیڈر ہے, ہی ہیز نو رسپانسبلٹی. نکلے اٹھ کے, ایک اس کو لگائی, ایک چپت اس کو لگائی, ایک فکرہ اس پہ مارا, ٹی وی پہ رونق کی رونق, مزے کا مزہ. لیکن if you are responsible for law and order, and for God's sake try to understand, اسلام آباد میں سفارتکار ہیں جو گنتی کے رہ گئے ہیں, بہت کم رہتے ہیں. بہت انہوں نے ابھی سے ہی کہا تھا اسٹاک واک کریں, میں نے کچھ میموز شیموز بھی دیکھی, بہت سارے جو ملک ہیں انہوں نے اسلام آباد کو بھی نان فیملی, ہاں جی نان فیملی اسٹیشن ہے, ڈینجر ہے, جیسے وار زون ہوتی ہے جہاں جنگ. اس کے بعد بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر ایک بندہ آتا ہے بغیر بیوی, یا اگر خاتون ہے تو بغیر شوہر اور بچوں کے, اور اس کا پوسٹنگ 1 سال کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک.
ऑलरेडी आपकी माशाल्लाह ये रेपुटेशन है। और ये इस्लामाबाद जिसको बहुत सेफ शहर समझा बाकी जाता था वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह जो हैं उनके साथ आपने मुज़ाकरात करने हो तो आप दुबई जाते नहीं, हैं। वो आ गई ना, अब तो इधर ही भाई थी। पहली मर्तबा 600 प्रोग्राम साल खत्म होने में- के बाद वैसे बीबी 600 साल में पहली मर्तबा आई, गुड, मतलब कि आई एम अच्छी ग्लैड बात है कि वो वो आई। safe उनको लेकिन ये तो आपकी ऑलरेडी रेपुटेशन है, उसमें फर्ज करो वाकई लॉकडाउन हो जाए, हर चीज पैरालाइज हो जाए इस्लामाबाद की, तो हु वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? द गवर्नमेंट एंड ऑब्वियसली और इंतजामिया। सो उन्हें एंटिसिपेट करके कोई ना कोई प्रेपरेटरी इंतजामात करने होंगे, चलो, उसके लिए ओके। उन्हें नफरी बुलानी होगी, नफरी को रखना होगा, उन्हें वैन्स भी बुलानी होंगी, आंसू गैस के मजीद शेल मंगवाने होंगे, बुलेट्स कोई ये नहीं वो रबड़ शबड़ की जो होती हैं, और शायद इजाफी नफरी भी बुलानी पड़े, वो तो आ रही है कल रिजर्व परसों में तक। से। तो अब उनको रखा जाएगा कहीं कहीं वो कि भाई कुछ यहाँ वो खिलाया सोया पिलाया करें, जाएगा। यहाँ खाया वाया खाएं पिए रहें, और उसका फिर वो रोटा बने के कौन 8 घंटे ये शिफ्ट होगी 8 घंटे, तो इसमें कौन सी वैसे वो नथिंग वेरी एबनॉर्मल। 126 दिनों में नुसरत साहब उन बेचारे पुलिस वालों की काफी मुश्किल थी, मतलब वो इतने दिन तक, और हम लोग देखते थे ना मैरियट वगैरह के बाहर, and it was really- that's what their job is। बदकिस्मती से कुछ जॉब्स डिमांडिंग होते हैं। आप फर्ज करो कि अगर उस दिन लॉकडाउन हुआ तो मैं भी F8 से चल के तो यहाँ आऊंगा, हाँ नहीं आना तो हमें होगा ऑब्वियसली। मैं तो दफ्तर आऊंगा ना, शो मस्ट गो ऑन। नहीं वो तो नुसरत साहब सारा दिन ही चल रहा होगा शो, टू बी परफेक्टली कोई और मुझे देखे और कहे कि बेचारा भाई पैसे क्यों तुम्हें मिल रहे हैं, इसीलिए मेरे कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भैया। भाई ये जो पाकिस्तान को ये इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर रहे हैं, यहाँ पब्लिक नहीं रह रहे हैं, यहाँ कोई बंदे हैं ही नहीं जिनको मैं ये तंग कर रहे हैं, इमरान वाले यहूदी लाबी है। अरे जिनके भाई, बारे में खैर और वो अरे जो भाईजान बैठा हुआ है, मेहरबानी करें, ये यहूदी यहूदी लॉबी लॉबी बोला शॉबी हमने काफ़ी, किसी को मोदी का यार बना देते हैं, किसी को यहूदी लॉबी बना देते हैं। मसला ये है कि उन्होंने एक तहरीक बनाई हुई है, एक मूवमेंट है, अब उनको ब्रेक साथ ही वो कह नहीं रहे मतलब हैं। मकसद उनका ये था कि यहाँ लोग नहीं रहते बेचारे, उनका क्या कसूर है ना, दैट इज नहीं तो यहाँ पे यही तो उनका जनरल बंदा असद उमर इलेक्ट हुआ हुआ है इस शहर से, वो यहाँ का है ही नहीं, नुसरत साहब तो इलेक्ट हुआ। आप तो फिर उसको क्यों वोट दिया यहाँ वालों ने? पता नहीं, मैंने तो नहीं तो दिया। पूछो मैं ना क्या कह उनसे। सकती हूँ? तो किससे- इसका मतलब है नुसरत साहब, कि ये किससे शहर पूछूं? बिलोंग्स टू इमरान, हद होगी। एक इनका यहाँ है, दूसरा वाला नून लीग का है। बहरहाल वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो हमें लिख के ज़रूर भेजें। अब ये है कि वो क्या है? अच्छा, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकती, आप इमरान खान साहब से एग्री करें या ना करें, मैं करूं या ना करूं। फैक्ट इज के जावेद हाशमी भी तो यहाँ के रहने वाले नहीं थे ना, हाँ लेकिन वो फिर भी बड़े जीते, लीडर थे। उन्होंने सीट खाली की, उससे असद उमर असद साहब उमर लड़े लड़के आए, बिल्कुल। और फिर वो भी जीते। इसका मतलब है कि इस शहर में उनकी पीटीआई की सपोर्ट है, सपोर्ट ठीक है। fine, अच्छा, clearly। वो आपको सपोर्ट बल्दियाती इंतखाबात के दौरान भी नजर आई? धरने में भी नजर आई। बल्दियाती धरने को तो इंतखाबात, छोड़े ना बल्दियाती दीदी, इंतखाबात मैं में तो आपको ठीक ठाक वैसे है। बात करूं ना। और जी अस्सलाम वालेकुम जी, एक कॉल है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मंजूर काकड़ बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी भैया। सर जी 3 सवाल है मेरे। हाँ अव्वल तो एक सवाल यह है कि पिछले 15 महीनों में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बलूचिस्तान या कोयटा के 3 दौरे किए हैं। पहला दौरा उन्होंने किया था तलाल अकबर बुखरी साहब की ताज़ियत के लिए, दूसरा दौरा किया था उन्होंने 8 अगस्त को जब शोहदा वकिला के लिए वो आए थे जनाजे में शिरकत करने के लिए। उसके बाद तीसरा दौरा आया था, ये जो कल हुआ था वाकया, उस पे जनाजे के लिए शिरकत की। ये 3 दौरे मतलब 15 महीनों में वो हमें इतने जिम्मेदार रहे कि भाई बलूचिस्तान की हम नाहमरूमी की वो खात्मा कर देंगे, हमारा वहाँ पर मुकम्मल तौर पर फोकस है, ये करेंगे, डेवलपमेंट के काम करेंगे। पिछले 3 महीनों में इन्होंने सिर्फ इतने दौरे किए थे ना, तीनों बारी ताज़ियत के लिए आए हैं सर। और दूसरा जो सवाल है, ये जो पीटीसी की वॉल बाउंड्री है ना, हमें अच्छी तरह याद है कि अखबार में आया था तकरीबन 2010 में नवाब असलम जी रिसानी कि ने उसको वहाँ पर बनना चाहिए था, वो नहीं बनी। जी हाँ। नहीं सर, वही मैं अखबार के बात बता देता हूँ। एक बार
कोई अक्टूबर का महीना था 2010 में, हमने देखे थे कि नवाब असलम रिसानी ने वहाँ पर किसी पासिंग आउट परेड में शिरकत की थी। उस वक्त ही आईजी मलक मोहम्मद इकबाल साहब ने यही से कहा था कि हमारा एक बाउंड्री वॉल है, इसको आप बना दीजिए। तभी उन्होंने जी भैया, और नहीं बनी जी, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी सर? अच्छा, और तीसरी बात, ये हमारा कोयटा ये बैन अवी तौर पर एक यतीम खाना बनता जा रहा है सर। हम बिल्कुल नाइंसिक्योर है, खुदा की कसम सर, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन से मुल्क में रहे, हमारा कौन सा मजहब है, हमारा कौन सा दीन है। मस्जिद में जाता हूँ, वापस आता हूँ कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है जी, बिल्कुल आपके जो तीनों सवाल हैं जी बहुत वैलिड हैं, लेकिन मैं आपसे नहीं जी, मैं आपसे दोबारा अर्ज करूँगा, ये तीनों के तीनों आपके सवालात बहुत वैलिड हैं, लेकिन इसमें मेरी आपसे एक दरख्वास्त ज़रूर होगी कि इन तीनों सवालात के लिए आपको ये बात ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि आइन में 18वीं तरमीम हो चुकी है और सूबाई हुकूमत के पास अब मकामी मसाइल को, अपने सूबाई मसाइल को हल करने की ज़्यादा क़ुव्वत, ताकत और अख्तियार आइनी तौर पर मौजूद है। जी मुल्तान से अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी भैया फरमाइए। इस तरह के मेरा ये सवाल है कि ये कमीशन बनाने की कोई जरूरत नहीं। किस सवाल से? क्योंकि आज तक कमीशनों का कोई रिजल्ट नहीं भाईजान, कमीशन किस हवाले से? ये बताया नहीं रहा कि कमीशन बना दिया गया, इंक्वायरी कमीशन बना दिया अच्छा, इंक्वायरी कमीशन सानहा कोयटा आपके ख्याल में? अच्छा, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। खुदारा ऐसे कोई हालात पैदा किया जाए कि ये खत्म हो जाए। मतलब ये 18वीं तरमीम वाली बात जो है, ये अक्सर लोग करते हैं, सूबाई मामला हो गया, ज्यादातर इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास है, लेकिन बात नहीं ठीक है, आई नो दैट, बट मैं अगर हम ये तय कर सकते हैं PML नून वाले प्राइम मिनिस्टर नेशनल पार्टी के साथ कि आधा टर्म आप करेंगे, आधी टर्म आप करेंगे, वजीर आजम है आखिर इस मुल्क के, तो उनको किसी ने रोका तो नहीं है ना कि वो उनको, उन्हीं की जमात के भी वजीर आला है कि उन्हें वो कहें कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब देखिए, मैं आप हम ये कह क्यों देते हैं हमेशा, कह के आपसे हरगिज ये नहीं कह रहा कि वजीर आजम को ज्यादा भी जाना चाहिए, नहीं मतलब जाए, सिर्फ जाने की बात नहीं है। अरे बीबी सुन तो ले, वो ज्यादा जाएंगे तो वो कहेंगे जी ये तो रोज अपने अल्लाह तल्ले आ जाते हैं, एज इफ ही इज इंटरफियरिंग अ लॉट। सही है, मे बी सम प्लेसेस ही शुड, आई मीन ही इज द प्राइम मिनिस्टर, अगर वो नहीं कर रहे सही काम, मतलब नहीं, लेकिन क्योंकि क्लियरली वो नहीं कर रहे। जो इस बात का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, वो नुकसान ये होता है कि वो जो मतलब डॉक्टर मालिक जो बहुत बड़े यानी फन्ने खान चैंपियन थे सूबाई खुद मुख्तारी के, तो भाई तुमने 2.5 साल सूबाई खुद मुख्तारी को कैसे एक्सरसाइज किया? नहीं, नो डाउट वी शुड बी आस्किंग। इस सवाल का जवाब जो है मालिक को देना होगा, तो खैर वो चले, ये देते नहीं है फिर, और अब ये इसी तरह ज़हरी को देना होगा। बहरहाल वो कह रहे हैं वक्त खत्म हुआ, खत्म हो गया। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।